Hi Tenthis, welcome to your social science guide channel. Today I will continue the topic land degradation. In the previous video I have covered some of the causes of the land degradation. Today I will discuss the further causes of the land degradation. In the previous video I have discussed the cause of deforestation, mining and mineral processes, quarrying. Today I will discuss over irrigation, overgrazing and the industrial effluents. Let's start from the over irrigation. Now what is over irrigation? Over irrigation is the excess amount of water in the soil. ओके सो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलिनिटी और एल्केलिनिटी पैदा हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल है वो खराब हो जाता है. सो अगर हम नेक्स्ट कॉज की बात करें विच इज ओवर इरिगेशन. सो अगर हमें ओवर इरिगेशन समझाना पड़े तो हम लिखेंगे it is the presence of excess water in the soil which leads to a water logging, कि हम सॉइल में इतना ज्यादा पानी भर दें कि वो ओवरफ्लो हो जाए, सॉइल का समुद्र बन जाए, ओवरफ्लो हो जाए, सॉइल किसी लायक ना रहे. अब वाटर लॉगिंग हो गई तो वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल में सबसे पहली चीज आएगी सैलिनिटी. व्हाट इज सैलिनिटी? अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल की क्वालिटी को बिल्कुल ही खराब कर देता है. और क्या आएगी इसमें? एल्केलिनिटी. व्हाट इज एल्केलिनिटी? इट इज द पुअर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल विच इज क्ले इन नेचर. नाउ व्हाट इज क्ले? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इट इज द काई. सो अगर सॉइल में ओवर इरिगेशन की वजह से पानी भरेगा तो सॉइल खराब होगी, और सॉइल खराब होगी तो दिस विल बी द लैंड डिग्रेडेशन. अब जब वो लैंड डिग्रेडेशन हुआ तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुई. वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल में बहुत ज्यादा सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी हुई. अब ये ओवर इरिगेशन कौन कौन सी स्टेट्स में होती है? ये उन स्टेट्स में होती है जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया. अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी स्टेट्स में आया? पंजाब, हरियाणा and western Uttar Pradesh. So these are the states in which over irrigation is the main cause for the land degradation. I hope over irrigation is clear to you. Now let's move to the overgrazing. Now what is overgrazing? जब हम अपने एनिमल्स को कुछ ज्यादा ही ग्रेस करा देते हैं, कुछ ज्यादा ही खिला देते हैं, कुछ ज्यादा ही फीड करा देते हैं ग्राउंड पे, जितना ग्राउंड की कैपेसिटी नहीं है उसको दोबारा ग्रो करने की. जैसे व्हाट इज ओवर इरिगेशन? लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. व्हाट इज ओवर ग्रेजिंग? इट इज द इंटेंसिव ग्रेजिंग. इट इज द इंटेंसिव ग्रेजिंग without the sufficient recovery period. मतलब कि आप जो है लैंड को रिकवरी पीरियड देते ही नहीं हो, और रिकवरी पीरियड से पहले ही आप उसमें और ग्रेजिंग करवा देते हो एनिमल्स से, जिससे लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. Now this type of problem we find in states like Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh. These type of problems we find in these states. Okay, so this was our fifth or sixth causes of the land degradation which we call the overgrazing. Now
Let's move to the most common cause of the land degradation, which we face in almost every state, every country, and which is the main cause of the land degradation, which is the industrial effluents, which we call the industrial effluents. Now, what is industrial effluents? Industrial effluents. Now, what is industrial effluents? Industrial effluents are the wastes produced by the industry and they discharge on the land, water, which is the main cause of the land pollution as well as the water pollution. Now, कैसे कैसे उसमें चीजें होती है, जैसे organic and inorganic material. Organic and inorganic material mean living and non-living. Organic means कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्लांट्स का पार्ट है, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट है. इनऑर्गेनिक मैटर लाइक डाइज फाउंड होते हैं, मेटल्स फाउंड होते हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड को खराब कर देते हैं, लैंड को डिग्रेड कर देते हैं. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. Now, our next topic in the chapter is the land conservation. Now, what is land conservation? अगर मैं पूछूं land conservation क्या होता है? Land conservation is the method that how we will protect our land from getting degradation. कि हम अपने लैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं जिससे जो हमारी लैंड की क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है, वो खराब ना हो. So the first method is afforestation. The opposite of the deforestation is the afforestation. So for about afforestation, what we mean by afforestation? Planting of the trees, which is the opposite of deforestation, which is the permanent removal of the trees. Now the second method is the proper management of grazing. मतलब कि हम अपने जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर ग्रेजिंग कराएं. हम देखें कि कहाँ पर रिकवरी रेट ऑफ लैंड ज्यादा है, कहाँ पर टाइम लगेगा. तो अगर हम उस हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट करके एनिमल्स को ग्रेज कराएं तो उससे हो सकता है कि हमारा जो लैंड है वो थोड़ा सा डिग्रेड होने से बच जाए. नाउ द थर्ड मेथड जिससे हम अपने लैंड को बचा सकते हैं, इट इज द कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग. You can club these 2 points, but in the book it is given different, so I have written different, but you can club this point, you can skip one point and can make these points as one. Okay, now the fourth one is planting of shelter belts. Now what are shelter belts? आप क्या करते हो, आप प्लांट्स की एक रो बना देते हो, रो बना के उससे एक शेल्टर बनता है और उस शेल्टर से विंड वाटर का जो फ्लो है वो कंट्रोल होता है, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होती और साथ ही साथ आपकी क्रॉप्स भी प्रोटेक्टेड रहती हैं. सो दिस इज द शेल्टर बेल्ट. नाउ द फिफ्थ मेथड इज ऑन द कंट्रोल ऑन माइनिंग. हमें पता है कि मिनरल्स, मेटल्स वगैरह हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अर्थ के बारे में भी सोच के उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए. तो कंट्रोल ऑन द माइनिंग. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स. नाउ व्हाट आर वेस्टलैंड्स? जो हमने देखा था कि हम ऐसे लैंड्स को यूज करते हैं, या तो हम उसको बिल्कुल बैरन कर देते हैं, बिल्कुल ही किसी लायक नहीं छोड़ते, या हम उस चीज को यूज ही नहीं करते कि वो ओवर बढ़ती रहती है. तो अगर हम अपने वेस्ट लैंड्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन बच जाए. सो आप एक मिनट ये सारी चीजें कॉपी करो. 2 पॉइंट्स और है, लेट मी राइट दैट ऑल्सो. ओके, now the another method by which we can conserve the land degradation is that proper disposal or discharge
of industrial waste or effluent after treatment. जब हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना है, मतलब कि अगर इसमें मेटल और डाइज है तो हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके फिर लैंड पे छोड़े, ना कि ऐसे ही छोड़ दिया और लैंड जो है वो खराब हो गया. नाउ द एट्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर द एरिड रीजन्स. व्हाट आर एरिड रीजन्स? लाइक राजस्थान, जहां पर सिर्फ सैंड ही सैंड होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं एरिड रीजन. एरिड रीजन पे हम लैंड डिग्रेडेशन कैसे कंजर्व कर सकते हैं? वी कैन कंजर्व दैट सैंड ड्यूज, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. आप लोगों को लगता है कि जो कैक्टस है वो वहां के जो वेजिटेशन है वो वहां का इसलिए वेजिटेशन है राजस्थान जैसे एरियाज को क्योंकि दे कैन कंट्रोल द सैंड ड्यून्स. They can control the sand dunes. These thorny bushes like cactus can control the sand dunes, which अगर वो नहीं होंगे तो this will ultimately will lead to the land degradation. So आज के टॉपिक में से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी. So let me explain them one by one. The first thing which you must be not able to understand will be the shelter belts. कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं. यू कैन राइट द डेफिनेशन, यू कैन कॉपी द डेफिनेशन. इट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इन अ रो टू प्रोवाइड शेल्टर against wind or water and to prevent soil erosion. So shelter belts क्या है कि हम एक रो लगा देते हैं ट्रीज और प्लांट्स की. उस रो से जो भी विंड और वाटर का फ्लो होता है वो कंट्रोल हो जाता है और जो क्रॉप्स होती है उनको भी हार्म नहीं होता और जो सॉइल होती है उसको भी हार्म नहीं होता. नेक्स्ट चीज जो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगी टू अंडरस्टैंड इज द सैंड ड्यून्स. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? These are the landforms. These are the landforms formed by water or wind driven sand which takes the form of hill. मतलब डेजर्ट में आपको हिल दिखाई देंगे, मतलब डेजर्ट में आपको रेत के पहाड़ दिखाई देंगे और अगर वो रेत के पहाड़ ज्यादा हो गए, सैंड ड्यून ज्यादा बड़े हो गए तो वो लैंड डिग्रेडेशन करवाएंगे. इसीलिए इस लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए थॉर्नी बुशेस ग्रो होती हैं लाइक कैक्टस जो इस सैंड ड्यून्स के लेवल को काट देती हैं और एज अ रिजल्ट लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है. तो अब हम फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो भी आज हमने क्लास में किया है. फर्स्ट, we did the other causes of the land degradation other than the deforestation, mining, mineral and processes, quarrying. We did over irrigation, we did overgrazing, we did their states like over irrigation mainly took place in the states where the green revolution take place like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. The over irrigation problem took place in the areas like the Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and the Rajasthan. नाउ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वाली प्रॉब्लम तो हर जगह, हर अर्बन एरियाज में जहां इंडस्ट्री होगी वहां लैंड डिग्रेडेशन हो गई होगा. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन मेथड. इन द कंजर्वेशन मेथड वी डिड द ऑपोजिट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन व्हिच इज द एफॉरेस्टेशन. देन वी
डिड अबाउट ग्रेजिंग कि हमें ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कितना हमारे लैंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें अपने एनिमल्स को ग्रेज कराना चाहिए. नेक्स्ट वी talked about the shelter belts, which I have talked about in detail, so I am not repeating it. Shelter belts. Then we did about the mining ki we have to control our mining practices, otherwise it will lead to the problem. Then we did about the proper management of the wastelands, the land which we left over or we left कि हम उसको इतना ज्यादा यूज कर देते हैं कि वो बैरन हो जाता है. और हमने क्या किया, प्रॉपर मैनेज और डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को प्रॉपर वो करके हमें उसको ट्रीटमेंट करके फिर हमें छोड़ना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग वी डिड फॉर द कंजर्वेशन इज द सैंड ड्यून्स कि थॉर्नी बुशेस ग्रो करनी चाहिए अगर हमें सैंड ड्यून से लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है. So in the next video I will cover the soil and some of the soil types. So please like and share my videos and also subscribe my channel. These videos will really help you when you will face your board exams. Okay, thank you.